ہم اسی بات کے تعلق سے سیکھنے والے ہیں۔ تو یسوع المسیح دنیا میں ایک واحد ایسی ہستی ہوئی ہے جن کے پیدا ہونے سے پہلے اور دنیا میں موت کا مزہ چکھنے سے پہلے جو کچھ دنیا میں ہونا تھا، جو کچھ آپ کے ساتھ وقوع پذیر ہونا تھا، سب کچھ پیشن گوئیوں کی صورت میں کلام کے اندر درج تھا۔ لیکن اپنے موت اور جی اٹھنے کے بارے میں ایک ایسی نبوت جو یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے خود صادر فرمائی تھی، وہ یہی نبوت تھی کہ میں مروں گا اور دفن کیا جاؤں گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ کلام مقدس کے آغاز میں اپنی رہنمائی کے لیے ہم اسی بات سے شروع کرتے ہیں۔ اپنی رہنمائی کے لیے جو حوالہ دیکھنے لگے ہیں وہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 20واں باب ہے اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے والا ہوں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 20 باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت۔ عزیز و کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے مارے اور مصلوب کریں اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو عزیزو، کلام اقدس میں سے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اور جس حوالے کی تلاوت کی ہم نے سماعت کی ہے، یہ اس لیے کی گئی ہے کہ جب یسوع المسیح یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو یہ بات آپ نے اپنے شاگردوں سے کہی۔ کن سے کہی؟ شاگردوں سے کہی۔ اور شاگردوں سے جب وہ مخاطب ہوتا تھا، جب وہ کلام کرتا تھا تو وہ چھپے ہوئے طریقوں سے یا تمثیلوں میں بیان نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ ڈائریکٹ کلام کرتا تھا، کیونکہ کہتا تھا تم لوگوں کو خدا کے کلام کے بیتوں کی سمجھ عطا کی گئی ہے۔ اور وہ جانتا تھا کہ جو باتیں میں اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہوں یہ ان کے ایمان کا حصہ بن جائیں گی۔ اور اس نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم دیکھو گے کہ اسی شہر کے اندر جب میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ مجھے غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا، وہ مجھے کیا کریں گے؟ ٹھٹھوں میں اڑائیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے اور میرا برملا تماشا بنایا جائے گا، اور پھر بالآخر مجھے صلیب کے اوپر مصلوب کر دیا جائے گا، اور مصلوب ہونے کے بعد مجھے قبر میں رکھا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ میں زندہ ہو جاؤں گا۔ کیا کہا؟ میں کیا کروں گا؟ زندہ ہو جاؤں گا۔ اور یسوع المسیح واحد ایسی شخصیت ہے کلام مقدس کی جو فرماتے ہیں کہ آسمان ٹل سکتا ہے، زمین ٹل سکتے ہیں، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور یہ بات کسی اور نبی، کسی اور رسول، کسی اور پیغمبر اور کی نبوت نہیں ہے، بلکہ یہ خدا
खुदा के मुजस्सम कलाम और ये तजस्समे कलाम का दावा है कि मैं मर जाऊंगा, दफन किया जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। लेकिन सवाल ये है कि उसका मरना क्यों जरूरी था? यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर फरमाया कि अगर मैं चाहूं तो 12 तुमन फरिश्ते मेरी मदद के लिए आ सकते हैं। कहा तो ऐसा भी हो सकता था, लेकिन उसने इसके बावजूद ऐसा नहीं होने दिया। उसने बाप से नहीं कहा कि ऐ बाप मैं तेरी मदद को चाहता हूं, बल्कि उसने क्या कहा कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? अगर वो ये कहता कि ऐ बाप मैं तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं तेरा साथ चाहता हूँ, मैं तेरी कुदरत को देखना चाहता हूँ, मैं तेरे जोर को देखना चाहता हूँ, तो जो कौल उसने कहा था कि 12 तुमन फरिश्ते मेरी मदद को आते, तो 12 तुमन फरिश्ते अगर उसकी मदद को आ जाते तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया की हालत क्या होती। दुनिया में एक भी जर्रा, एक भी ऐसा एलिमेंट बाकी ना रहता जिसके अंदर जान होनी थी। दुनिया में से जिंदगी का वजूद खत्म हो जाना था, क्योंकि सदूम और अमूरा के वक़्त के अंदर एक फरिश्ता जो है वो सदूम और अमूरा के इलाका में उतरा है और आज तक सदूम और अमूरा की सरजमीन पर कोई फसल, कोई पैदावार नहीं होती। आज तक जो लोग उस इलाका में से गुजरते हैं वो उनका बयान ये है कि आज तक उस इलाका में से गंधक की और आग की क्या है, झुलसने की क्या है, खुशबू आती रहती है। और एक फरिश्ते का ये आलम है। तो 12 तुमन फरिश्ते जब उतरते तो 12,000 फरिश्ते, और फिर उन 12,000 फरिश्तों को 6,000 से ज़रब देते तो फिर जाकर एक तुमन बनता। तो सोचे कितने फरिश्ते उतरते तो क्या दुनिया का आलम होता कि दुनिया में से जिंदगी का वजूद ही खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से फरमाया था कि मैं क्या करूंगा, मरूंगा और फिर मेरे जिस्म को क्या है, गैर कौमों के हवाले किया जाएगा ताकि वो उसका क्या करें, बरमला तमाशा बनाए, ताकि उसे कोड़े लगें और वो मसलूब किया जाए और फिर उसे कब्र में उतार दिया जाए। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आसमान टल सकता है, जमीन टल सकती है, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया था कि मैं मरूंगा और क्या करूंगा, कब्र में रखा जाएगा और फिर मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और इसी बात को जानते हुए जो उसके शागिर्द थे वो क्या कर रहे थे, उसके जी उठने का क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, उसके जी उठने का इंतजार कर रहे थे। और आज के दिन सुबह सुबह पोप उठने से पहले वो वहां पर पहुंची बहनें, और उन्होंने जाकर किस मकसद से वो गई, इसलिए नहीं कि यीशु जिंदा हो गया होगा और हम गवाही देंगी आकर, बल्कि वो इस मकसद से गई ताकि हम अपने मालिक के जिस्म को खुशबूदार अतर और मसाले लगा सकें, क्योंकि वो इस दुनिया फानी से क्या कर गया है, कूच कर गया है, और उसका जिस्म जो है वो ज्यादा देर तक क्या जल्दी ना गल सड़ जाए। इस पर्पस से बहनें मसाले लेकर उसकी कब्र पर गई थी। किस लिए गई थी?
ताकि यीशु मसीह के जिस्म को क्या करें, खुशबूदार मसाले लगाएं, और ताकि वो ज्यादा देर तक कब्र में पड़ा रहे और उसका जिस्म जल्दी गले सड़े ना। लेकिन अब वाकया और किस्म का रूनुमा हो गया है। और वाकया क्या रूनुमा हो गया है? जिस कब्र के ऊपर, जिस पत्थर के ऊपर रोमी मोहरें लगाई गई थी, पहरेदार बिठाए गए थे ताकि यीशु अपने कौल के मुताबिक जिंदा ना हो जाए, ताकि यीशु के जिस्म को उसके शागिर्द चोरी ना कर ले, क्योंकि रोमी जानते थे, क्योंकि फकी फरीसी जानते थे। आज तक कलाम अक़दस में से जो दावा यीशु मसीह ने किया है वो सच साबित किया है और उसने करके दिखाया है। और जो दावा उसने अपने शागिर्दों के सामने किया था कि मैं मर जाऊंगा, मसलूब किया जाऊंगा, कब्र के अंदर रखा जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, वो अपने कौल के मुताबिक जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है वो के झूठ बोले, और ना वो आदम जात है कि अपने इरादे को तब्दील करे। वो कलाम मुजस्सम और गोया खुद खुदा जो कहता है वो हो जाता है, और वो कुन फयकुन कहने वाला, और जो कहने वाला वो तख्लीक में आकर दुनिया को वजूद में करने वाला, उसी का दावा है कि मैं मर जाऊंगा, दफन किया जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। अब इस दावे को झुठलाने के लिए उसकी कब्र के ऊपर पहरा लगाया गया है। उसकी कब्र के ऊपर पहरा लगाया गया है, और दुनिया की तारीख बदलने वाली है। दुनिया की तारीख के अंदर आज तक जो भी आया है उसका पैदा होने का दिन मनाया गया है, उसका मरने का दिन मनाया गया है। लेकिन यीशु मसीह दुनिया की तारीख को एक नया दिन दे के जा रहा है, और वो दिन है जी उठने का दिन। यीशु के अलावा दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, कोई ऐसा नबी नहीं है, कोई ऐसा रसूल नहीं है, कोई गौस कुतुब, कोई अब्दाल नहीं है जिसके जी उठने का भी दिन मनाया जाए। यीशु मसीह ने दिनों के अंदर भी तसलीस को पूरा करके दिखाया है। उसके पैदा होने का दिन है, उसके मरने का दिन है, और फिर उसके जी उठने का भी दिन है, जो आज मैं और आप सेलिब्रेट करते हैं। वो किस लिए जी उठा है? वो इसलिए जी उठा है ताकि वो इंसानों को, ना सिर्फ उन इंसानों को जो दुनिया के अंदर हैं, बल्कि आदम से लेकर यीशु मसीह के आने से पहले तक जो लोग थे वो अबलीस की कैद के अंदर थे, और वो उन्हें छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया। कलाम मुकद्दस में से एक हवाला अपनी रहनुमाई के लिए और देखेंगे। इब्रानियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और उसका 2 बाब है, और उसकी 14वीं आयत है। नहायत तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। इब्रानियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब पर उसकी 14वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि क्या लिखा है? ताकि मौत के वसीला से, किसके वसीला से? मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, अबलीस को तबाह कर दे। किस लिए?
ताकि इब्लीस को क्या कर दे, तबाह कर दे। क्योंकि यीशु मसीह के आलम रवा में उतरे जाने से पहले इब्लीस का जो कब्जा था, इब्लीस की जो हुकूमत थी, वो आलम रवा के अंदर थी। और आदम से लेकर यीशु मसीह से आने वाले तमाम इंसानों और तमाम नबियों तक जितनी भी रूहें आलम रवा में उतरती थी, वो उन्हें क्या कर लेता था, कैद कर लेता था। वो उन्हें कैद कर लेता था। और फिर वो जो थे आलम रवा के अंदर कैद रहते थे। यीशु मसीह ने मौत को इसलिए गवारा किया ताकि वो आलम रवा में उतरे, ताकि वो मरने के बाद इब्लीस और उसकी फौजों के साथ जाकर जंग करे। और जंग करने के बाद ना सिर्फ जंग करे बल्कि वो जंग जीते। और उसने जंग जीती और आलम रवा की कुंजियां इब्लीस के कब्जा में से छीन ली। और पतरस के खत में लिखा है कि वो आखिर जमाना में आलम रवा में उतरा और उसने जंग जीत कर मौत, कब्र और इब्लीस पर फतह हासिल कर उसने कहा कि मौत तेरा डंग कहाँ रहा है। और इब्लीस से उसने आलम रवा के अंदर उतर कर उससे कुंजियां लेकर वापिस आकर पतरस पर जाहिर होकर कहा, पतरस ये आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं और मैं तुझे देता हूँ। तेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकेगा और तेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकेगा, क्योंकि वो फाते खुदा और बा इख्तियार और इख्तियार को छीन कर अपने लोगों में तकसीम करने वाला खुदा साबित हुआ। इसलिए उसने मौत का मजा चखा ताकि वो आलम रवा की कुंजियां वापस हासिल कर सके। और फिर उन औरतों से जो उस की कब्र पर आई, उसने एक सवाल किया फरिश्ते। वो सवाल क्या था कि मैं जानता हूं, 28वां बाप है मत्ती की इंजील, उसका 28वां बाप है। फरिश्ते ने उससे कहा कि मैं जानता हूं कि तुम यीशु मसीह को ढूंढने आई हो जो कि मसलूब हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें कहना ये चाहता हूँ कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है। उसने क्या कहा, वो यहाँ नहीं है बल्कि अपने कौल के मुताबिक। उसने ये नहीं कहा कि नबियों के कौल के मुताबिक, उसने क्या कहा, वो अपने कौल के मुताबिक जी उठा है। वो अपने कौल के मुताबिक जी उठा है। अजीजों, यीशु मसीह की वाहिद पेशन गोइयों में से एक ये पेशन गोई कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये अपनी जात और अपनी मौत के बारे में वो पेशन गोई जो उसने खुद कही और उसने ये साबित करके दिखाई। और वो सवाल जो औरतों ने अपने साथ लिया, आप भी अपने साथ लेकर अपने घरों में जाइएगा। अगर वो यहाँ नहीं है, अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है? अपनी जिंदगियों में गौर कीजिएगा। अगर यीशु मसीह जिंदा होने के बाद उस कब्र में नहीं है तो वो कहाँ है? अगर वो आपकी जिंदगी में जिंदा नहीं है, अगर वो आपकी जिंदगी में नहीं है, तो फिर वहाँ पहुँचें जहाँ वो मौजूद है और उसे जाकर सजदा करें। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत दे और तौफीक अता फरमाए कि हम इस पर अमल कर सकें।